Yes. Yes. Okay, so HC Verma part 2. Second volume is first initially required. Electric current and conductors. तो आपको ये पढ़ने के लिए भी एक अच्छी बुक है. Don't worry. I think we did questions involving connection, extra connecting wires also. So I'm taking few examples from that part और आपको फिर solve करके बताना है. So mostly practice kind questions. Find the equivalent resistance between point A and B in the following network. Question is from HC Verma only. 4 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 4 ohm. It's a very simple question. We have done quite complicated ones also. Find the resistance between point A and B in this circuit. Yes. क्या आंसर? ये तो ओरल हो जाना चाहिए यार अब तो. This is so easy. Or what is the answer? Sir, 6. 6. 6. 4 and 2 in series become 6. 6 and 3 in parallel become 2. 4 and so this 3 and 6 become in parallel 2. 2 and 4 will become 6. 6 and 3 in parallel become again 4. 6 and 3 in parallel become again 2. 2 plus 4 will become. Sir, please wait for 2 minutes. Utkarsh is joining your class. Okay, sure, ma'am. So we have to buy volume 2 of HCR, no? HCR, no? Yes. Volume 2 of HC Verma for now, but it's better you take the combined package, both of them, because part 1 also will be required when we do the class 9th portion. With solutions or without solution? Without solution, I specifically mentioned that. Solution मिले तभी market में this thing that you can do is seeing solution. It's not that complicated a book that you require solution. Solution के लिए मैं हूँ. And those solutions are very third grade solution. जो हम 2 लाइन में कर लेंगे वो उसमें 2 पेजेस में solution दिए हुए हैं. So yes. Okay, done. Utkarsh. Good afternoon, sir. Good afternoon, Buddha. How are you? Sir, I'm fine, sir. Very nice. So you missed this class, so I don't know. Did you see the recording? NDSC का भी एक ऐप पे ग्रुप बन गया है and मैम सृष्टि मैम has uploaded the recording. और एक आपको अलग प्लेटफॉर्म भी है, उस पे भी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी for the test. So कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे. You just try to understand with the example. बाकी आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लोगे, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. सर एक बार लास्ट डायग्राम दिखा दो. सर मैंने उसे नोट नहीं किया था. अच्छा तो मैंने किया था.
सर वो Yes. मैंने ऐसे ही कर लिया सर, मैंने नोट नहीं ठीक किया। है, अच्छा ठीक, वेरी गुड। उत्कर्ष, series resistance formula is R equivalent is R1 plus R2, right? Yes, sir. ओके सर। और parallel में Sir, 1 upon R P equals to R1 plus 1 upon R1 plus 1 upon R2. R2, ये इसको सॉल्व करने के बाद इनवर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है R1 R2 divided by R1 plus R2. This is the formula for current resistance. So we will prefer this, क्योंकि फिर इसमें कैलकुलेशन की गलती चांसेस कम होते हैं एरर के। ये 4 and 2 सीरीज में आ गया 6, फिर 6 और 3 पैरेलल में, सो 6 और 3 का पैरेलल में होगा R1 R2 divided by R1 plus R2, which is 18 by 9, so that becomes 2. So yes, 6 ohm and 3 ohm, that becomes 2 ohm. This 2 ohm will be in series with 4. Yes, step by step. This is 6 and 3 become 2. Then 2 and 4 in series will become 6 again. And that 6 ohm and 3 ohm will be in parallel. इसका से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा बहुत आ रहा है, yes, sir. नहीं, थोड़ा सीरीज पहले नॉर्मल वाला पढ़ा है ना, ये वाला। Yes, sir. Normal वाला पड़ा है. सीरीज का मतलब एक ही ब्रांच में, तो ये 4 and 2 in the same branch, बीच में और कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 4 plus 2 6, राइट? Yes, sir. ये 4 और ये 4 सीरीज में है, और देन सीरीज ये नो no, sir, व्हाई नॉट? because वो joint है. क्योंकि बीच में भी एक जॉइंट है, बीच में भी एक जंक्शन है, इसलिए। तो हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 4 and 4 in series, 4 and 2 in series become 6. So this is 3 और ये लास्ट वाला हो गया 6। अभी ये 6 और 3 पैरेलल में दिख रहे हैं, करेक्ट? Sir. पैरेलल में फॉर्मूला है R1 R2 upon R1 plus R2। वो 1 upon R1 को एलसीएम लेके और सॉल्व करने के बाद so it becomes R1 R2 divided by R1 plus R2। 18 by 9, that is 2 ohm। तो इन दोनों को मिला के हम 2 ohm लिख सकते हैं। 3 ohm 4 ohm, ये 6 और 3 का ओवरऑल रेजिस्टेंस 2 ohm, so we substitute 2 ohm, राइट? 4 और 2 फिर से आ गए सीरीज में, सेम स्टेप। उत्कर्ष, Yes, sir. सही समझ आ रहा है ना? ये 6 और 3 पैरेलल में, Yes, sir. here it become 2, so ये A और B में था, this will become 2 ohm 4 ohm, so ultimately the final is this। अब ये 4 और 2 सीरीज में, so R equivalent comes out 6 ohm। so ऐसे नॉर्मल सर्किट में हमें सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना होता है ऑलवेज फ्रॉम दैट ब्रांच जिसमें और कोई साइड ब्रांच ना हो। केशव, Yes. Yes, sir. ये मैंने केशव को पूछा, केशव इज नॉट हियर, ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देन वी डिड, सो मैं हर तरह के एक एग्जांपल लेता हूं, आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम एचसी वर्मा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एचसी वर्मा इज क्वाइट अ डिसेंट बुक और हम इस बुक को फॉलो करेंगे फॉर दिस कोर्स। सो नेक्स्ट हमने कुछ पढ़ा था, फाइंड द सर्किट्स हैविंग सिमेट्री। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ दोस टाइप। Find equivalent resistance between A and B. Each resistance is R. बाकी लोग कर सकते हैं अगर याद है कि हमने क्या करना है। Yes, this point is A, this point is B. Each resistance is R.
ठीक है, अब For the plane the adjacent sides, won't they be in series? नहीं बेटा, वो सीरीज में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में तो बैटरी लगानी है हमें। अब इसमें कोई भी ऐसे दो रेजिस्टर नहीं जिसके बीच में ब्रांचिंग ना हो। एवरी टू रेजिस्टर देयर इज अ ब्रांच इन बिटवीन। जैसे ये यहाँ से आओगे तो इधर नीचे ब्रांच है, ये इधर जाओगे तो ऊपर। कोई भी दो कैपेसिटी, कोई भी दो रेजिस्टर सिंगल ब्रांच में नहीं है, देयर इज ऑलवेज सम साइड ब्रांच फ्रॉम द मिडिल, राइट। अब इसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, बट दिस सर्किट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस सर्किट के ठीक बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सिमिलर सर्किट, इसलिए इस तक पहुंचने में पोटेंशियल हाफ होता है। हाफ का मतलब एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एट सेम पोटेंशियल। हम नए वाले केसेस भी करेंगे, बाकी लोग परेशान ना हो। विल कम बैक टू सम न्यू सर्किट। ईच पॉइंट ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एट सेम पोटेंशियल। उत्कर्ष, अगर किसी वायर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उसमें करंट कितनी फ्लो होगी? if both ends are at same potential, what is the potential difference? So Zero. 0. 0. Zero. If potential difference is zero, what will be the current? Zero. V is equal to IR. V is equal to IR ना? Yes, sir. Sir, potential zero तो current zero, so इस resistance में जो plane of symmetry के ऊपर lie करता है, it does not have any current. If it does not draw any current from the circuit, उसको हम circuit से हटा देते हैं। Any resistor lying on plane of symmetry can be removed. Right. Okay. प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम हटा देते हैं। एंड सो नाउ अब ये दोनों ऊपर वाले आ गए सीरीज में। व्हाट इज द आंसर सहन? ये आर और आर सर सीरीज में RR हो गए। 2R हो जाएगा और नीचे का भी 2R हो जाएगा। मैं फिर तो वो पूरा करना चाहिए था यार, आप तो पहले पढ़ चुके हो। मैं फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ आपके अच्छा मेरे ओके साथ। सर। Because understood this plane of symmetry Yes, thing? sir. Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक बीच से पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। इसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस लाई करेंगे उसको हम हटा सकते हैं। ऊपर वाला आर और आर 2R, नीचे वाला आर और आर 2R, और Sir, 2R/3. Yes, sir. 2R/3. का Yes. नहीं। चलो सांझ, व्हाट इज योर आंसर? सांझ, 2R/3. तो ये बीच में भी एक ब्रांच है, ये कहाँ गई? सर ये दोनों तो ऐड हो जाएंगी। ऊपर 2R, बीच वाले में 2R और नीचे भी एक R है। 2R पैरेलल में R, फिर R और R पैरेलल में R/2 आना चाहिए। सर और मेरा व्हाट भी इज आंसर? R/2 आया। सर मैंने बस Yes, 1/2R sir. 1/2R प्लस 1/R कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे कर लो, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। सबने सेम मिस्टेक कैसे की? आपने बीच वाला 2R हटा दिया शायद। Yes. Only 2R and R in parallel. 2R और R का 2R/3 होगा, but there are three resistors, 2R, 2R और R. Because Yes, sir. ये समझ गए? सर तो फिर 4R²/5। नहीं, वैसे 4R जब दो से ज्यादा होते तो हम वो मेथड यूज नहीं करते। Then you Oh, have to use 1/R, it is 1/R1 plus 1/R2. अगर 2 से ज्यादा है तो हम वो R1 R2 वाला यूज नहीं करेंगे। Then we'll okay, sir. directly, तो ये 2R में 1 plus 1 plus 2, that is 4/2R. R equivalent is R/2.
लोगों में सबको मिस्टेक अपनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक केस तो ये होता था जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टर लाई करता है, हम उसको सर्किट से हटा देते। दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एचसी वर्मा, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और हमने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में किए हैं। सो आई विल आल्सो गिव यू न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन बट slowly. Next question is again find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance between A and B in the following circuit. क्या करते हैं ऐसे केसेस में? Sahan, how to solve these type of questions? सर Yes, बेटा. सर लाइन ऑफ सिमेट्री हम हॉरिजॉन्टली भी खींच सकते हैं। अभी आऊंगा मैं, अभी हम केवल वर्टिकल वाले ले रहे हैं, उसमें भी नहीं, यहाँ पे horizontal भी तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे भी तो सेम है। नहीं सिमेट्री है बट यहाँ पर उसकी यूज नहीं करेंगे, उसको यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम जिन पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वहां पे एक बैटरी लगाते हैं एंड देन वी ड्रॉ द प्लेन ऑफ तो रेजिस्टर्स का वैल्यू क्या है? ऑल आर आर। ओके, हम जंक्शन वाला वो यूज करेंगे इसमें हम जंक्शन लॉ लगाएंगे, जंक्शन वाला मेथड लगाएंगे। जब किसी प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जंक्शन लाई करता है, उस जंक्शन को हम उस प्लेन के लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ, सो दैट देयर विल नॉट बी, अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे तब भी इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज दिस इज एट द सेम पोटेंशियल। उत्कर्ष आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझना है थोड़ा थोड़ा, और बाकी आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक करोगे, यू विल फाइंड मोर एग्जांपल्स। लॉजिक ये है कि ये तीनों पॉइंट जो अभी इसके ऊपर थे, ऑल दीज पॉइंट, ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं। ये कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, इनके बीच में करंट फ्लो नहीं करी, तो इनके बीच में करंट नहीं है तो हमने इसको वहां से हटा दिया। वी कैन ओपन इट। हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2 2 2 2 2, ठीक है। और ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम। फाइंड द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उत्तर से समझ में आया लॉजिक आपको? नो सर, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला जो ये नहीं है। ठीक समझ से। प्लेन ऑफ सिमेट्री में दो केसेस थे। पहला, अगर उस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे पूरा का पूरा रेजिस्टर लाई करता है, जैसे ये पूरा रेजिस्टर था इसके ऊपर, पूरा रेजिस्टर का मतलब उसके दोनों टर्मिनल, सर 2.4 उसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं सर्किट से। दिस कैन बी विथड्रॉन कंप्लीटली, राइट? यस सर। कर्ष, यस सर। सर आवाज नहीं आ ये रही केस क्या? यस आ सर, रही, ये मेरी आ कैसे रही ना? समझ आ गया जब प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइज ऑन द रेजिस्टर। प्लेन ऑफ सिमेट्री पे दूसरा केस, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे पूरे रेजिस्टर की जगह पे एक जंक्शन लाई करे, यहाँ पे कई सारे रेजिस्टर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दैट जंक्शन लाइज ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस जंक्शन को हम प्लेन की तरफ, ये प्लेन ऊपर है, ऊपर वाले को ओपन कर देंगे ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ। और इसका भी लॉजिक वही है कि ये तीनों पॉइंट्स, all these 3 points lie on plane of symmetry. Plane of symmetry
सिमेट्री पे पॉइंट्स के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल. सो दे आर एट सेम पोटेंशियल, हमने इन दोनों के बीच में ओपन कर दिया which was initially connected. So ये ऊपर की तरफ आ गया 3 and 3, 3 और 3 Sir, in your parallel. voice is not clear. So your voice is cracking. इसको connection में ओपन कर सकते हैं. Yeah, I changed to a new network. Hopefully should be fine. बेटा अभी आवाज आ रही है ठीक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Mr. Utkarsh, you understood this? जंक्शन Yes. को प्लेन के डायरेक्शन में ओपन करके शिफ्ट कर देंगे और पूरा रजिस्टर होगा तो गैप कर देंगे. बस ये दो केसेस थे. ये 3 and 3 in series become 6, 6 and 3 in answer is parallel become 2. 2.4. बीच में 3 and 3 this in series become 6. Yes, sir. And इनके sir, बीच below में भी हम सेम चीज कर सकते हैं तो 2 ohm बिलो में दोबारा भी सेम चीज होगी तो एग्जैक्टली सेम रजिस्टर ही हो जाएगा. ऊपर आया 8, बीच में आया 6 और नीचे आया 3 plus 2 plus 3. Kabir, what is the final answer? I'm calculating 1 second. Sir, 2.4. Yes, sir, 2.4. 2.4. Okay, fraction में कितना? 24 by 10. Yeah. 24 by 10 क्या बोल रहे हो? और सिंप्लीफाई नहीं होगा? सर ये 12 by 5. 12 by 5 ना. 8 and 8 parallel में 4, 4 and 6 in parallel 24 by 10 that is 12 by 5. Sir, हाँ देखिए 2.4, sir. Sir, मेरा भी 2.4 ही आ रहा है. 2.4 ही आएगा. सही आएगा. सही करोगे तो सही आएगा. ओके. सो अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें क्या करते हैं. So I'm taking one example of all the previous cases. ये हम सब कर चुके हैं. सर्किट में दोनों सिमेट्री साथ में हो सकती हैं बट हमें यूज कौन सी करनी है वो सर्किट के डायग्राम पे डिपेंड करता है. ये किया था हमने. Yes. Did we do this example? Yes, sir. Right. ये भी किया था. एक ही बात है. Suppose we connect a battery here. We connect a battery. उत्कर्ष में हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है? Is there a vertical plane of symmetry? No, sir. क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है.
बीच में रखो कोई है प्लेन। सर, पर हम यूज नहीं करेंगे कि इसका फायदा यस नहीं सर, होगा कुछ। क्योंकि कोई रेजिस्टर उस पर लाइन नहीं कर रहा है। हाँ यस, बट अगर बोले प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट उस प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि ना तो उस पे कोई जंक्शन है और ना ही उस पे कोई रेजिस्टर लाई कर रहा है। सो व्हाट वी डू, we cannot use that. यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेफ्ट साइड राइट साइड एग्जैक्टली सेम, बट वी विल नॉट बी एबल टू यूज इट। सो हम उसकी जगह पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज plane of symmetry which is parallel to the battery. This is the horizontal plane of symmetry between points A and B. और horizontal plane of symmetry के लिए condition क्या थी? This works like a mirror. Mirror image points are at same potential. Mirror image points about plane of symmetry is at same potential. इसके ये ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 1, क्योंकि दूसरे का मिरर इमेज है। दिस इज अगेन अनदर पॉइंट्स पेयर ऑफ मिरर इमेज। इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, सेम पोटेंशियल, इसलिए इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो जो रेजिस्टर्स लगे हैं बीच के, इनको हम गायब कर देंगे बिकॉज दे विल नॉट ड्रॉ एनी करंट। The points lying on the plane of symmetry यस, कितना आएगा फिर इसका रेजिस्टेंस? सर 3R/2। सर 3R/2। R/2। 3R/2, ये दोनों हट गए, ऊपर का 3R नीचे का 3R। राइट, नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक केस क्या था हमने, सर्किट्स हैविंग एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर। Circuits having extra wire. एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर के लिए क्या होता है, all those which are connected by some extra point, extra wires, the points which are connected together by wire comes at same potential. जो पॉइंट्स वायर से कनेक्ट हो जाते हैं those become at the same potential, क्योंकि अभी तो सारे सीरीज में बीच में हमने कुछ वायर लगा दिए। This point is A, here it is B. The points which are connected by wires are at same potential. So ये जो point wire से connect हो गए, these two will be at same potential. तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट में दोनों को हम सेम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे बोथ आर बिहेविंग एज सेम पोटेंशियल पॉइंट। पॉइंट्स कनेक्टेड बाय वायर आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों को हम सेम पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। पॉइंट्स कनेक्टेड बाय वायर्स आर एट सेम पोटेंशियल, जब भी किसी भी दो बॉडी को हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। Likewise, there is another pair of points. ये दोनों points को हम 2 2 assume कर लेते हैं, 2 and 2, right? Okay. So
So to simplify this circuit, ends पर लेते थे A और B, और जो 2 पॉइंट बचे, एक 1 है, another one is 2. We locate all the resistors किन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, और हम उसको सर्किट में फिर से ड्रॉ करते हैं. पहले रेजिस्टेंस है बिटवीन A and 2, so first resistance is between A and 2. Second is between 2 and 1. Second is between 2 and 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. We can make this as 2 ऊपर की तरफ और 1 नीचे की तरफ, because one and 2. So एक सेकंड, इसको हम ऐसे देखिए पॉइंट कैसे लेते हैं. एक इस साइड में कौन सा कनेक्टेड है? 2, सो हमें इधर लेना चाहिए 2, ऑन द अदर साइड 1. पहला रेजिस्टर है A और 2 के बीच में, दूसरा रेजिस्टर है 2 और 1 के बीच में. Third, then again between 1 and 1, 2 are in series. Again between 2 and 1, and last one is again between 1 to B. ठीक है, तो करना क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमें सर्किट में ड्रॉ करना है. एंड्स पे हमेशा लेंगे A और B, और बीच में जंक्शन के बीच में विल टेक पॉइंट 1 and 2. ये रिकॉर्डिंग में और एग्जांपल्स हैं, आप वहां से देख लेना. अभी बस मैं हर एक केस का एक एग्जांपल करा रहा हूँ. कितना आएगा इसका आंसर क्विकली? अभी सिंपल हो सर गया. 12R/5. 12R/5. R/2, 2R, and R/2, 2R/5 plus 2R, 12R/5. Correct. हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट भी कर लिया था शायद, Yes. Yes. राइट? Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज कर रहे थे लास्ट, या शायद वो भी कर लिया था. व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कौन से होते हैं? Circuits having total 5 resistors, 4 along the sides of quadrilateral, 5th along the diagonal. ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. और अगर इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड रेजिस्टेंसेस के रेशियो इक्वल हो जाए, if R1 by R2 is equal to R3 by R4, then फिर जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री का केस था वैसे ही कुछ यहाँ पर हो जाएगा कि that these 2 points X and Y will be at same potential. Only under this condition, when the left side and right side ratio is equal, it is called balanced Wheatstone bridge. No current in R5, इसलिए हम R5 को सर्किट से हटा देते हैं. ऐसे बैलेंसिंग कंडीशन में जो बीच में सर्किट लगा हुआ है, this is also called a bridge resistor. That bridge resistor can be removed. R1 by R2 is equal to R3 by R4, तो सर्किट से बीच वाले को हटा दें. पिछला 15 हम हटा देंगे. ऊपर आ जाएगा 5 and 10 in series. $20 ohm and $40 ohm. उत्कर्ष, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. ये तो समझ आ गया.
कितना आएगा आंसर भी उसका बताना 12 ohm. Curse answer of this Sir, 12. 12 15 and 16 in parallel 15 into 60 by 15 plus 60 that will become 12 ohm. Okay, so now I'm taking more example from the HC Verma. Some more questions from HC Verma text exercise at the last. Find the resistance between point A and B in the following circuit. Each resistance is R. Find the equivalent resistance. क्या करें अब इसमें? So इसमें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप का सिमेट्री लग सकता है. सर इसमें वो इसको रीड्रॉ करेंगे क्या? ड्रॉ करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्यों नहीं लग सकती? क्यों? ये पॉइंट ए और बी के बीच से पर जो सिमेट्री है वो उन पॉइंट्स के बीच से परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए जहाँ पे हमने बैटरी लगानी है. ये सब मुझे लगा था ए से कनेक्टेड है. नहीं. तो which method? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है. दूसरा मॉडल हो सकता है पॉइंट्स कनेक्टेड बाय वायर्स आर एट सेम पोटेंशियल. ये इससे कनेक्टेड है तो ये बी हो गया. ये इधर कनेक्टेड है ये भी बी हो गया. ये नीचे कनेक्टेड है ये भी बी हो गया. बी जो बचा 1. तो ए बी और 1. ड्रॉ द सर्किट. Yes, what's the answer? 4R/3. ए और 1 के बीच में केवल एक रेजिस्टेंस है आर का. 1 to B, 1 to B, 1 to B, there are 3 resistors. So 4R/3. Yes, 4R/3. R and R/3 in series. Okay, another similar type question again from HC Verma. Find the resistance between point A and B. B is the midpoint. Find resistance between A and B. सर सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं. हाँ. Sorry, A छोटा वाला है.
तो ये जो नीचे को वायर है कनेक्टेड है बीच से, तो जो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। यस, बीच में कनेक्टेड है। R/4 कितना बड़ा? R/2। ये सारे R/4 आपस में पॉइंट से कनेक्टेड है। दिस बिकम B, दिस बिकम्स B, दिस बिकम्स B, दिस बिकम्स B। राइट। तो ये सारे पॉइंट्स बी थे। ए और बी के बीच में टोटल 4 रेजिस्टर्स हैं। आर 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 एंड आर, दैट बिकम R/4। राइट, अब आते हैं हम थोड़े 3D सिमेट्री वाले सर्किट्स पे। 3 डायमेंशनल सिमेट्री, मतलब किसी क्यूब के लिए। उत्कर्ष, would I understood this method? नो सर, मुझे मुझे सर फर्स्ट वाला नहीं आया, सेकंड वाला मैंने कर लिया था। तो उसमें क्या है, जो वायर से कनेक्टेड होते हैं वो सारे सेम पॉइंट पे हो जाते हैं। जितने भी जंक्शन इससे कनेक्टेड है वो सारे बी बन जाएंगे कि सब बी से कनेक्टेड। इसका मतलब कि बी पे यहाँ बैटरी लगा। ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर बिकम एट सेम पोटेंशियल। ओके सर, अंडरस्टूड। ये सारे बी 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 हो गए, ये ए, और एक जंक्शन बच गया तो उसको हमने 1 ले लिया। जब भी हम सर्किट बनाते हैं हम टर्मिनल्स वो लेते हैं जिनके बीच में निकालना हो, और अगर कोई पॉइंट बचता है तो उसको बीच में हम अज्यूम करके नन भी सराउंडिंग सर्किट। ओके, बेटा समझ में आ गया ये ऊपर वाला फर्स्ट एग्जांपल और यस सेकंड सर, यस एग्जांपल? ये ऊपर वाला समझ। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इज 3D सर्किट्स। 3D सर सर्किट्स में, हाँ बेटा, सर क्वेश्चन 45 का सी वाला कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन 45 का सी वाला कैसे करेंगे? सी वाला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी सर कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला? नहीं नहीं, वर्टिकल ही है। तो एक क्वेश्चन रह गया था, वो भी देख यस लेते हैं। सर। This is another question from SC Verma, 45, question number A and B. Each resistance is R. सर बी Find the, थोड़ा ऊपर है ना, है क्या? क्या फर्क पड़ता है, वायर ही है ना, कंफ्यूज करने के लिए है वो। ठीक है, वायर में कहीं पर भी हो द सेम थिंग। यहाँ पे कनेक्ट बैटरी हियर, और ये बीच से प्लेन और सिमेट्री लाई कर रही है। प्लेन और सिमेट्री के दोनों रेजिस्टेंस बता देंगे। ऊपर 2R, नीचे 2R, 2R and 2R in parallel become R, right? यस। Yes, sir.
ओके 3D सर्किट्स 3D सर्किट में थोड़ा सा रैंडम सा सर्किट बन रहा है सपोज वी हैव these 8 resistors along a pyramid. Find the equivalent resistance between A and B. Each resistance is capital R. क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? सर्किट समझ में आ गया ना? सर ये क्या 3D क्यों है? पिरामिड है? अच्छा पिरामिड है सर, मेरे को पूछा नहीं। तुम्हें क्या दिख रहा है? प्रिज्म। प्रिज्म भी 3D होता है। यस। कबीर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इज देयर अ सिमेट्री और नॉट? सिमेट्री है इसमें? मिस्टर कबीर Yes, sir. सिमेट्री है इसमें? नहीं है? Yes, शायद से है। अरे मतलब इसको छोड़ो, पिरामिड में सिमेट्री होती है कि नहीं होती? पिरामिड लुक्स सेम ऑल द फ्रॉम ऑल द साइड, लेफ्ट साइड, राइट Yes, sir. साइड और नॉट? यस, उसमें भी है। अब वो सिमेट्री 3D में अगर नहीं दिखे तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस सर्किट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसको फिर से 2D में ले आते हैं। कन्वर्ट 3D सर्किट इनटू 2D सर्किट। फर्क नहीं पड़ेगा कि वायर ही है। इनटू 2D सर्किट कैसे? गो ऑन, प्रेस इट। इसको प्रेस करोगे तो ये इसके प्लेन में आ जाएगा। समझ में आया ना? क्लिप करके इसको नीचे ले आना है। तो यस ये सर। जो पॉइंट ओ टॉप पे है ऑफ द पिरामिड, ये इधर इसके बेस में आ जाएगा। ये क्या किया समझ गए? 3D पे गए, इस Yes. सर्किट को यहाँ से प्रेस करके नीचे सेंटर पे ले, तो दैट 3D सर्किट नाउ बिकम्स 2D सर्किट। यहाँ पे हमें बैटरी लगानी है। दिस इज सेम सर्किट जो एक जंक्शन ऊपर उठा हुआ था, उसको प्रेस करके हम नीचे ले आए ऑन दैट प्लेन। अब इसमें कौन सिमेट्री? अब तो नॉर्मल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई, वर्टिकल। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको ऊपर खोल लेंगे, इसको नीचे खोल लेंगे, दैट्स इट। तो 3D सर्किट सॉल्व करना 3D में बहुत इजी है, उसको हम 2D में कन्वर्ट करके और फिर करेंगे। We'll convert that circuit from 3D to 2D and then we will solve it. क्या आएगा आंसर? Yes, what is the answer? What is the answer? 21R by 20. Yes, how much?
21R by 20. Okay, please confirm. सांझ ये R 2 और R ऊपर हो जाएगा 2R/3, नीचे भी आ गया 2 और R 2R/3. This becomes 8R/3, 8R/3 and 2R/3 in parallel. R1 R2 divided by R1 plus R2. Three by 8R plus 3 by 2R. मेरा तो ये आ रहा है 8R/15. Yes, मैंने 2R by 3 को गलती से 3R by 2 कर दिया. उत्कर्ष 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 ओके. और सेम आंसर. यस सर. Yes. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, 3D सर्किट एक बार समझा सकते हैं? 3D सर्किट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको 2D में गिरा देते हैं. प्रेस दैट सो दैट इट कम्स इन द सेम प्लेन. हम ओ पे खड़े हो गए, ओ को प्रेस कर दिया जब तक वो नीचे बेस में नहीं आ गया. तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा. ओके सर. कनेक्शन सेम रखना है, वायर सेम रखना है, बस 3D से 2D में कन्वर्ट कर लेना है. अब ये सिंपल नॉर्मल सर्किट बन गया. ऐसे ही नेक्स्ट इज फाइंड द रेजिस्टेंस इफ 12 resistors are connected along the face diagonal of a cube. Across the face diagonal of an edge of a cube, each side length has resistance of R. Next question. Hint same, 3D को 2D में कन्वर्ट करना है. यस डन. बेटा समझ में आया करना क्या है? जैसे वहां पे एक पॉइंट थे, वैसे यहाँ पे पूरे को पकड़ के में प्रेस कर देना है. जो नीचे वाला स्क्वायर था वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लो. दिस इज द बेस स्क्वायर. और जो ऊपर रूफ का स्क्वायर है वो बीच में आ जाएगा. देखो समझ में आ रहा है क्या किया? यस सर, पुश डाउन कर दिया तो फिर वो. हाँ, पूरे ऊपर वाले जो ऊपर की जो रूफ थी सर उस मैंने पूरे को सर मैंने 2 स्क्वायर बना लिए ऊपर नीचे सर, फिर ऐसे उनके एजेस कनेक्ट कर दी कर्व पे. सर ऐसे कर सकते हैं. उसके बाद क्या करेंगे? Is there a plane of symmetry? Is there a plane of symmetry? Yes.
जिन पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है वहां पे बैटरी लगाते हैं और इसके ठीक बीच से पास होने वाले रेजिस्टर से बीच से पास होने वाला अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, so these two resistors lying on plane of symmetry दोनों को हटा देंगे and then we calculate the final equivalent capacitance. कितना है आंसर? जो सिमेट्री 3D में नहीं दिखती उसको हम 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं. We convert it into 2D and then we can see the symmetry. Here there is a plane of symmetry, perpendicular plane of symmetry. So इसके ऊपर जितने भी resistors इसके भी resistors हैं उनको हम सर्किट से हटा सकते हैं. So these two resistors will be gone. R ये ऊपर R नीचे R इसका बनाना है. What is the equivalent resistance of this circuit? Yes. किसी क्यूब में उसके साइड के अलोंग टोटल 12 रेजिस्टर्स थे. हम उसके एक फेज डायगोनल पे कैलकुलेट कर रहे हैं अक्रॉस वन ऑफ द फेज डायगोनल. अक्रॉस फेज डायगोनल को 3D से 2D में चेंज करेंगे. 3D को 2D में चेंज कर लेंगे. प्लेन ऑफ सिमेट्री सर 3R/7. कितना बेटा? 3R/7. 3R/7. ऐसे ये R 2R 2R 3R/4 आ रहा है. सर 4R/7. नहीं बेटा. Saan, what is your answer? Sir, I am calculating. ऊपर वाले ब्रांच में ये R और R सॉरी सीरीज सॉरी में सर मैंने 2R, R को 2R लिख दिया. नीचे वाले R में 2R, बीच में R से मिलके हो गया 3R. 2R 3R and 2R, these are in parallel. सर 3R/4. 3R/4, right. 3R/4. एक और केस देख लेते हैं आज के लिए क्विकली. उत्कर्ष ये समझ में आ गया? उत्कर्ष सर वो मीटिंग में नहीं है. ओके. हाँ, एक बस वन लास्ट केस कॉल्ड एज इनफाइनाइट लैडर सर्किट. ये थोड़ा सा टेढ़ा सर्किट है. सर्किट इज गोइंग टिल इंफिनिटी, इसलिए इसका नाम है इनफाइनाइट लैडर. ऐसे इंफिनिटी तक. ये तो 1 पढ़ा ohm, था. 2 ohm. हाँ बेटा, ये तो करे थे इसके एग्जांपल्स. वही समझ नहीं आ रही, फिर से बोलना. इसके एग्जांपल्स तो करे हैं क्लास में. ये हमने किया क्लास में? नहीं Yes, ये टॉपिक नहीं करा पर इसके क्वेश्चंस करे हैं. नहीं, तो सर इनफिनिटी ओपन में किया था सर्किट ना. है ना ये?
अरे नहीं नहीं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे आगे एंड तक, ऐसे इनफाइनाइट स्टेप्स है। हाँ सर नहीं किए। हाँ नहीं की, ऐसे इनफाइनाइट लैडर तक ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। देयर इज नो, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा कहीं पे, मतलब लास्ट में जाके ओपन नहीं है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा, बट दैट इज इनफाइनाइटली फार। ठीक है। सो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिक क्या होता है इसका, थोड़ा टाइम कम है इसलिए क्विकली समझना। इन्फिनिटी माइनस वन कितना होता है कबीर? व्हाट इज इन्फिनिटी माइनस वन? कबीर, सांझ, इन्फिनिटी माइनस वन। सर इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी होगा। इट्स लाइक यू आर टेकिंग वन बकेट वाटर फ्रॉम द ओशन, कितना बचेगा? सेम। इन्फिनिटी sir. माइनस वन इज इन्फिनिटी, यस। सो इसका मतलब हम एक लेटर कट करके अगर हम ए बी की जगह पे पी क्यू पे जंप कर दें, इट इज स्टिल द सेम, इट इज स्टिल द सेम। सर मुझे समझ नहीं आया। बेटा इन्फिनिटी में अगर एक सबट्रैक्ट कर देते हैं देन इट स्टिल रिमेन इन्फिनिटी, क्योंकि ये लैडर ना ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है। देयर आर इनफाइनाइट लैडर्स, इनफाइनाइट स्टेप इन अच्छा, दिस लैडर। सो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, equivalent resistance between A and B is R equivalent. Equivalent resistance between P and Q will also be same. Why? Because infinity minus one is infinity. बेटा ये समझ में आ रहा है नहीं? So can you explain it again? I was having some network issues. सर एक यहाँ तक सर्किट तो है, समझ आ गया। ठीक, अभी आगे और आएगा। सांझ अगेन, ए बी के आगे ये सर्किट है, द सर्किट इज गोइंग टिल इंफिनिटी, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। हमें इनफाइनाइट सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। व्हाट वी डिड, हमने अज्यूम कर लिया ये आर इक्विवेलेंट है, with the logic that infinity में अगर हम वन subtract भी कर देंगे then also it will remain infinity. So we jump to P and Q और यहाँ सर्किट को स्टार्ट करते हैं काउंट करना। It is still the same circuit. So P Q के आगे का जो सर्किट है उसको अगर हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे उसकी वैल्यू कनेक्ट करना चाहें then that value will also be same as R equivalent. Whether you calculate from AB, it is infinite steps ladder, or you start from PQ, it is still an infinite step ladder. ये समझ में आ रहा है? These two circuits are same. Yes, sir. Yes. So 2 and R now in parallel. 2 and R equivalent. It become R1 R2 divided by R1 plus R2. और ये इस वाले 1 के साथ सीरीज में आ गया। कबीर, कबीर, ओके कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेंगे, अभी मैं कर देता हूँ। ये दोनों सीरीज में आ गए। 1 plus 2R equivalent divided by 2 plus R equivalent. ये किसके बीच का रेजिस्टेंस आया? A और B के बीच का, which is also equal to R equivalent. Solve this equation for R equivalent. जाहिद, यस सर। बेटा समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस ए बी से इनफाइनाइट था, पी क्यू से भी इनफाइनाइट है, एक लेटर कट करने पे फिर इनफाइनाइट।
सो पी और क्यू को हटा के उसकी वैल्यू लगा दी, फिर हमने सर्किट सॉल्व किया, ए बी के बीच में जो वैल्यू आई दैट विल आल्सो बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लोगे 2 plus R equivalent plus 2R equivalent divided by 2 plus R equivalent is equal to R equivalent। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके रूट्स निकालेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ R equivalent। कल करते हैं, अगर ये सही नहीं सॉल्व होगा तो we'll start tomorrow little early 2:30। टू plus 3R equivalent is equal to R equivalent into R plus 2। सर ये बेसिकली quadratic- अगर हम आर इक्विवेलेंट को x ले लें तो x को माइनस एक्स प्लस 2 इक्वेशन बनेगी। हाँ भाई, R equivalent को सीधे निकाल लेते हैं -2, ये बन गया ना इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका रूट निकाल लो, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, 1 प्लस माइनस 3/2। रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट विल कम आउट 2 ओम। यस सर। ठीक है, सो आई थिंक टाइम हो गया अभी नेक्स्ट क्लास का, अभी आपकी भी और मेरी। सो विल कंटिन्यू टुमारो एट 2:30। Okay, sir. ठीक है, इस एग्जांपल को हम कल फिर से कर लेंगे, डोंट वरी, आई विल टेक द सेम पीडीएफ नोट। राइट, ओके देन, बाय। Thank you. सर Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. बोलो कुछ कह रहे थे। सर वो एनटीएससी के लिए सर उसमें एसएसटी के इतने क्वेश्चन आते हैं सर मैथ से ज्यादा, सर उसके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए? बेटा बुक की जरूरत नहीं है, आपका एक पोर्टल तैयार हो चुका है, आपको अभी उसके शायद यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली होगी। स्पीड लैब्स पे हमने स्पीड लैब में डेवलप किया है, उसमें मेंटल एबिलिटी भी है, उसमें सोशल स्टडी भी है, एवरीथिंग इज देयर। यू डोंट नीड टू बाय, जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस। यस सर। आपको केवल अपनी 9th और 10th की बुक्स पढ़नी है सोशल स्टडी के लिए और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो इन सर योर 9th की बेसिस पे है ये? हाँ 9, 10 दोनों की आती है। उसके बाद आपको पेपर करने हैं, बस ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir.